चुनाव आयोग इस समय 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान कर रहा है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने। पिछली बार जब विधानसभा चुनावों का ऐलान किया गया था तो वो भी तारीख थी 18 जनवरी 2018। आज 18 जनवरी 2023 है। पिछली बार जब चुनाव का ऐलान किया गया तो त्रिपुरा में 18 फरवरी को और मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी के चुनाव का ऐलान किया गया था, वोटिंग का ऐलान किया गया था। इस बार क्या होना है, इसकी तारीखों का ऐलान अभी चुनाव आयोग करने वाला है। 3 मार्च को पिछली बार नतीजे आए थे। यदि विधानसभाओं का कार्यकाल देखें तो नागालैंड का विधानसभा का कार्यकाल 12 मार्च को खत्म हो रहा है, मेघालय का 15 मार्च को और त्रिपुरा का 22 मार्च को खत्म हो रहा है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी या बीजेपी सहयोगी दलों की सरकारें हैं। इस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। सीधे चलते हैं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखते हैं कि वहाँ क्या अपडेट है। और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ऋषभ तिवारी जी हैं, त्रिपुरा से पिनाकी दास जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट लाइव के न्यूज एडिटर हैं पिनाकी दास, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। To us and repeatedly telling through the medium of the press, our friends, it helps us to ensure that the elections are free and the inducement free. We will also deploy observers in these 3 states, 64 expenditure observers. We have identified expenditure sensitive constituencies. In some states they are more. Out of these 3, in some states they are more. Because each state is different, each state's context is different. We will also have 69 general observers and we will have 33 police observers in these places. And large number of instructions have been given to enforcement agencies to curb the flow of cash, to asking banks to keep a watch on the accounts, also asking them, again, the use of money also people are becoming smarter. In last time we came to a situation where the bank account is used to transfer money through the ballots or something to the large number of voters. We have asked banks to keep a watch on this. We'll monitor the ballots, we'll monitor the payments through electronic means, and we'll also monitor the withdrawal of used cash or deposits of used cash in any account in these 3 states, and also wherever elections are held. We have also directed the Narcotics Bureau and the State Excise to very, very strictly look for drugs. Because this, not in this area, otherwise also you saw it in Bengal, you saw it in Punjab and Gujarat also, last elections, large number of seizures were made. So, drugs also we have very, very strictly said. So, in nutshell, our paramilitary forces have already this time reached these 3 states and they are already involved in area domination, and because of that, I am again happy to report, because of that, the incidents of violence so far are nil. And we are hopeful, we have told our DOs, and citizens also want this not to happen. They are also very much in favor, and we have appealed to them while we were there, that please help us by knowing any possibility through C-Vigil or something, bring it to our notice so that we can get your help to curb it. Model Code of Conduct will now come into force in these 3 states, and next, if we can show you the schedule, the dates would be something like this. Tripura, and we have taken let me tell you first this, the date of issue of notification in case of Tripura would be January 21, and last date of making nominations January 30. We will also put it on social media account of ours immediately, so that you can take this, you can put it right now. So if you want, it can be downloaded from our sweep handle. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January, and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. This is to take into account, this has taken into account that the examinations schedules
are also taken into account and that children are not really disturbed by this to the extent possible. So since most of the exams are by and large in March, we have tried to finish this in February itself, and no polling station is in any school which is a CBSE related school whose CBSE schedule has come. So there is only one paper before this, but we have ensured that in no school there is a CBSE center or a CBSE school. Next. This is all the dates. We are also having by-elections. There are by-elections now, whatever are the vacancies reported to us so far. We are all covering them, and this is the tradition again we are starting, not to wait. As soon as there are vacancies, we try and finish up, though we can wait technically for 6 months. But we are finishing it, keeping it update, giving the electorate to have their representatives. So there is one AC each in Arunachal, Jharkhand, West Bengal, Tamil Nadu, 2 ACs in Maharashtra and 1 parliamentary constituency in Lakshadweep. The details would be available of these names of these constituencies, and the schedule would be like this. They will go with the Meghalaya and Nagaland poll on the same day. That means the February 27th would be date of poll, and January 31st being the date of notification. Thank you, friends. Again, through you, I want to appeal to all the voters to come forward, participate in the large number, and strengthen the democracy, deepen it further. And through the media, I'm sure all this will reach them, and media this time would also be far more receptive to showing some good stories of the election. There are a large number of good stories which are being produced. We have also taken on ourselves. We have asked the DOs to please document those success stories. Please document. So they are also in the process. I'm sure they will also do that. Thank you very much. Thank you, sir. I would now invite all your questions. Kindly introduce yourself along with your name and media organization before you begin the question. Any questions, or sir's opening statement has been detailed enough? Shailesh Sharp. माइक पकड़ा लें। दोबारा एक बार बोलेंगे आप? चुनाव आयोग ने तीनों राज्यों के चुनावों का ऐलान कर दिया है कि किस तरह से वोट होंगे। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के। त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होंगे और मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होंगे, वोटिंग होगी। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी, त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग होगी। तीनों राज्यों के जो चुनाव नतीजे हैं वो 2 मार्च को आएंगे। इसके साथ साथ जो कुछ बाई पोल्स हैं यानी उपचुनाव हैं उनको भी 27 फरवरी को किया जाएगा वोटिंग का काम, उन बाई पोल्स पर भी, उपचुनावों में भी। लेकिन राज्यों के जो चुनाव हैं त्रिपुरा में 16 फरवरी को होगा। आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि पिछली बार त्रिपुरा में 18 फरवरी को चुनाव हुआ था, वोट हुआ था। वोटिंग का काम जो है 18 फरवरी को होता, लेकिन इस बार 16 फरवरी को रखा गया। जबकि मेघालय और नागालैंड में पिछली बार भी 27 फरवरी को वोट डाले गए थे, इस बार भी 27 फरवरी को होंगे। पिछली बार चुनावों के नतीजे 3 मार्च को आए थे, इस बार 2 मार्च की डेट रखी है चुनाव आयोग ने इन राज्यों के चुनाव नतीजे आने के लिए। यानी तीनों राज्यों के और उपचुनावों के नतीजे 2 मार्च को सामने आ जाएंगे। जबकि पिछली बार ये नतीजे 3 मार्च को आए थे। 18 फरवरी को पिछली बार हुए थे चुनाव त्रिपुरा में, जो इस बार 16 फरवरी को होने वाले हैं। और मेघालय और नागालैंड में पिछली बार भी 27 फरवरी को वोटिंग हुई थी, इस बार भी 27 फरवरी को वोटिंग होने वाली है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रत्नाकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, ये आपने देख लिया है कि किस तरह का पूरा इलेक्शन प्लान है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी देखिए विजय जी, मुझे आश्चर्य होता है कि छोटे छोटे स्टेट्स के ये इलेक्शंस हैं जी, ये भी क्यों नहीं एक साथ एक डेट में हो सकते हैं।
जी इतना बड़ा हमारा देश, पहले तो पूरे देश में एक साथ चुनाव हो जाया करता था जी। लेकिन अब अगर हम त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड जैसे चुनाव भी जो साथ अगर साथ ही हैं करीब करीब। मैं 1 तारीख को क्यों नहीं हो सकते, मैं तो ये कह रहा हूँ हमारे पास सिस्टम की हाँ, नहीं, कमी मैं है कह रहा हूँ क्या? राज्य बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए ही हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ऐसे तो इसकी आलोचना करने का कोई तुक नहीं बनता जी। लेकिन एक बड़े एस्पेक्ट में, बड़े पर्सपेक्टिव में जब हम बात करते हैं कि एक साथ चुनाव होने चाहिए तो ऐसे मौके पर तो हमें और करके दिखाना चाहिए जी। कि तीनों प्रदेश में एक साथ चुनाव। बहरहाल ये उतना बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी ये जो चुनाव की घोषणा हुई है, मार्च तक सरकार बन जाएगी। और देखिए एक आंकड़ा थोड़ी देर पहले हमारे साथी संजय जी थे, बता रहे थे कि 9 की ट्विनिंग बड़ा बीजेपी को सूट करती है, लेकिन त्रिपुरा में तो ये 16 फरवरी की आ गई, यहाँ 9 नहीं जुड़ रहा है, जबकि बाकी 2 प्रदेशों में 27 फरवरी की डेट है, यहाँ 9 जुड़ रहा वो है। बीजेपी के लोग आज की डेट को 9 में जोड़ देंगे, 18 जनवरी को हो रहा है अनाउंस, तो ये तो चलता रहता है, ये ऐसा इश्यू है। रत्नाकर जी, 3 राज्यों में से कोई राज्य आपको ऐसा लगता है कि जहां कांग्रेस सरकार बना सकती है? ईमानदारी से बताइए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत देना कि तीनों में राज्यों में बन जाएगी हमारी सरकार। विजय जी, मैं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि 3 राज्यों में कम से कम 2 राज्यों में हमारी सरकार जरूर बनेगी। जहां पे मेघालय की बात है और त्रिपुरा की बात है, तो इन 2 राज्यों में मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि यहाँ पे हमारी सरकार जरूर आएगी। और पिछली बार भी मेघालय में हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और त्रिपुरा में भी इस बार जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। जनता के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो निश्चित रूप से हम जिस प्रकार लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हमारी पार्टी मजबूत हो रही है, कार्यकर्ता संगठन का जो कार्यकर्ता है वो लोगों से मिल रहा है, जुड़ रहा है, तो निश्चित रूप से 2 राज्यों में कम से कम मेरी अपना ओपिनियन है कि 2 राज्यों में हम जरूर आएंगे। ठीक है रत्नाकर जी, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में उनकी इलेक्टोरल हिस्ट्री को सपोर्ट माना जाता है, तो जैसे आप कह रहे हैं कि मेघालय में अच्छी परफॉर्मेंस थी, 21 सीट्स मिली थी और 28% से ज़्यादा, वो 28.8% वोट मिले थे मेघालय में, लेकिन कांग्रेस की इलेक्टोरल हिस्ट्री को जोड़ के नहीं देखा जा सकता। गुजरात में भी पिछली बार आपके बहुत अच्छी सीट आई थी, अब इस बार क्या हुआ? नहीं, देखिए गुजरात में अगर इस तरह से बात कर सकते हैं तो हिमाचल में भी हम बात कर सकते हैं। हिमाचल में भी हम लोग पिछली बार नहीं थे लेकिन इस बार हिमाचल में आ गए। गुजरात में निश्चित रूप से देखिए वहां पे हारने का बहुत सारे कारण थे और उन कारणों के ऊपर जो है हमारा मंथन जरूर चल रहा है कि हम इस तरह से जो है इतना ड्रास्टिकली घट क्यों गए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरा फोकस थी कि प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, मुख्य गृह मंत्री का गृह राज्य है और स्वास्थ्य मंत्री का गृह राज्य है। तमाम जो है बड़े पोर्टफोलियो वाले नेता जो है उनका गृह राज्य गुजरात था, तो इनको हर हाल में, हर परिस्थितियों में वहां पे चुनाव जीतना था और नाना प्रकार के हथकंडे। सर वो तो 2017 में भी वैसा का वैसा ही था। खैर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता ऋषभ तिवारी साहब भी जुड़ गए। ऋषभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावों की तिथि का ऐलान हो गया, डेट्स का ऐलान हो गया। 16 फरवरी को त्रिपुरा में चुनाव होंगे और 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड में चुनाव होंगे, वोट डाले जाएंगे और 2 मार्च को नतीजे आएंगे। पोस्ट पोल एक्सरसाइज क्या होगी वो तो आप बाद में बता सकते हैं, उसके लिए तो आप में काफ़ी हुनर है, लेकिन प्री पोल क्या आपकी पॉलिसी है? प्री पोल में कैसे चुनाव को आप तैयार कर रहे हैं, कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं? विजय जी, सबसे पहले धन्यवाद चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। जी अभी चुनाव आयोग बेशक चुनाव की घोषणा किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट पे काफी पहले से कार्य कर रही थी और उसी कार्य का परिणाम होता है कि जो आपने पोस्ट रिजल्ट की बात की, तो रिजल्ट में हम आते हैं जनता के विश्वासों के साथ। जी। दूसरी बात, जहां तक पूर्वोत्तर राज्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद विजय जी, बिल्कुल मैं इसमें बोलने में मुझे कोई शक नहीं है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की जनता के बीच में हमने जगह बनाई है, वो शायद ही इतिहास में कभी ऐसा किसी ने जगह बनाने का प्रयास किया था। जी। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, 3 महीने पहले नागालैंड, कोहिमा, दीमापुर के रास्ते में प्रवास पे था और उस दरमियान जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम हो या सोलर का काम हो या वहां पे दीमापुर से लेके कोहिमा के बीच जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग विशेष पैकेज को चलाया है। तो मुझे लगता है जनता समझेगी और इस बार हमें अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दें। सर, आपने त्रिपुरा में
बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन उसमें भी 5 साल में मुख्यमंत्री बदल दिया आपने। खैर वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अभी पिछले दिनों क्या था, ऋषभ जी, मैं मुंबई में था, तो मुंबई में एक बड़े प्रोड्यूसर के साथ बात हो रही थी, तो उनके प्रोडक्शन कॉस्ट को और प्रोडक्शन को लेकर मैं बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा, सर पहले हम फिल्में बनाते थे तो प्रोडक्शन पे जितना पैसा खर्च होता था उसको कॉस्ट करते थे, और 5% 2% जो भी है उसके जो प्रमोशन है उस पर पैसा खर्च करते थे। अब आजकल हमें प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रमोशन कॉस्ट करीब करीब बराबर रखते हैं, और जो डेट्स हैं वो भी बराबर रखते हैं। क्या ये इलेक्शन में भी ऐसे ही खर्चा आजकल हो रहा है कि प्री इलेक्शन कॉस्ट और पोस्ट इलेक्शन कॉस्ट बराबर रहती है? देखिए, हमारे लिए इलेक्शन होता है, प्री में तैयारी होती है, पोस्ट में सेवा होता है जी। तो हम उसमें देखते हैं, प्री में तैयारी करते हैं, पोस्ट में सेवा किस भाव से करें वो हम देखते हैं, और उस सेवा भाव में जो हमसे जुड़ते हैं हम उससे जोड़ते हैं, तोड़ते कभी नहीं है। कोई कहीं से आता है तो स्वागत रहता है हमारा, तो हम उस रूप से काम करते हैं। सिनेमा का एक बड़ा, आपने प्रोड्यूसर की बात कही, मैं भी जब कॉलेज लाइफ में था तो डांस वांस करता था, तो हमने कहता था रिहर्सल मजबूती से होनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्टेज पे खड़े होंगे तो अगर सडनली कोई दूसरा गाना बज गया तो आपके अंदर इतना क्षमता होना चाहिए कि उस गाने पे भी आप थिरक सके, तो हम उस रूप से भी तैयार रहते हैं। जी, प्रेम कुमार जी, ऋषभ जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि रिहर्सल में वो दूसरा गाना भी यदि थिएटर उस पर बज जाए स्टेज पे, तब भी उसके लिए तैयार रहते हैं। इसको आप चुनाव नतीजों से देखते हैं? मुझे याद आ रहा है उन्हीं की बातों से, महाराष्ट्र में तुरंत में सैड सॉन्ग भी बजने लगा था, तुरंत में खुशियां के गीत भी बज रहे थे। रात में अगले सुबह जो है शपथ ली गई थी और वो शपथ नहीं चल सकी थी। तो बीजेपी वाकई हर तरह की रिहर्सल और एक्टिंग करती रही है। तो लेकिन आपने कॉस्ट का जो प्री पोल इलेक्शन कॉस्ट और पोस्ट पोल इलेक्शन कॉस्ट जो बताया, मुझे तो लगता है कि पोस्ट पोल इलेक्शन कॉस्ट हेवी रहने लगा है इन दिनों, और यही वजह है कि आपको ज्यादा ज्ञान है, इसलिए मैं तो एक आइडिया मेरे को वहाँ मुंबई में मिला था इसलिए पूछा। ये तो कर्नाटक में सबने पूरे देश को ज्ञान दिया है। कर्नाटक में खुलेआम लोगों ने स्वीकार किया कि कैसे कैसे पैसे मिले, तो ये इसलिए पूरे देश को पता है, कोई नई बात नहीं है। जी, रत्नाकर जी, ऋषभ जी ने तो कहा कि वो ऐसी तैयारी करते हैं कि स्टेज पे दूसरा गाना भी बज जाए तो डांस कर ही लेते हैं। कांग्रेस की हालत मेरी जैसी है कि जिस गाने पे रिहर्सल करें वो भी स्टेज पे बजे तो ठीक से नहीं हो पाता। देखिए विजय जी, मैं ऋषभ जी की बात कर लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं जी। तो ये आपने गुजरात के चुनाव में ही देखा कि जो विकास की राजनीति ये करते थे और कहते थे कि हम विकास करेंगे, और अंत में आते आते ये तोड़ने वाली बातों को ही ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि जब जनता को एक दूसरे से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे तो ये चुनाव जीत नहीं पाएंगे। और अंततोगत्वा वो 2002 के दंगों की याद दिलाते हैं, हिंदू मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति पे आ जाते हैं। तो तोड़ने की बात कौन करता है? और महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, अभी महाराष्ट्र की चर्चा हो रही थी, तो मैं कह दूं कि शिवसेना पार्टी को तोड़ करके ही आपने सत्ता यहाँ हासिल किया। आपने जोड़ के हासिल नहीं किया, तोड़ के हासिल किया। तो ये तोड़ने की पूरे देश में राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी है। रत्नाकर जी, महाराष्ट्र में तो ये मौका आपने बीजेपी से पहले ले लिया था, कांग्रेस के साथ जोड़ के शिवसेना को। चुनाव तो शिवसेना और बीजेपी के साथ लड़ा था। राजनीति करते हैं ना, ये अवसरवादिता की राजनीति करते हैं। ये पीडीपी से भी हाथ मिला लेंगे और जरूरत पड़ी तो दूसरे दलों से भी हाथ मिला लेंगे। तो इनकी अवसरवादिता का जो एक लालच था वो पूरा नहीं हुआ। इसलिए हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एजेंडे के तहत जो है हमने एक सरकार बनाई, और हमने बहुत बखूबी चलाई उस सरकार का। देखा कि कोविड काल में किस तरह से WHO ने भी तारीफ किया था और लोगों को कितना राहत पहुंचाने का काम किया था, ये हमने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सेना को दो फाड़ कर दिया। ऑपरेशन लोटस किया, सूरत से लेके और आसाम तक किस तरह से विधायकों को 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल में रखा गया, वो सारे लोग देखते हैं। 50 खोके बिल्कुल ओके। ये महाराष्ट्र का बच्चा इस नारे को जानता है, और किसके पार्टी के लिए ये चरितार्थ है वो सब लोग जानते हैं कि कौन जोड़ने का। ऐसा होता है क्या रत्नाकर जी, ऐसा होता है क्या कि बीजेपी के लिए आपने कहा कि वो अवसरवादिता की राजनीति करते हैं और कांग्रेस का अवसर मिल नहीं पा रहा? देखिए विजय जी, क्या है, मैं आपको आज के परिदृश्य की बात बताता हूं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नैतिकता की राजनीति के ऊपर आज काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी
ये जानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के मुद्दे पे चुनाव जीतती है, लेकिन हम उन मुद्दों पे नहीं जाते हैं। हम हमेशा जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और जमीन पे उनसे जुड़ने का काम करते हैं। और आज नहीं तो कल देखिए, हो सकता है हमारी लड़ाई लंबी हो, लेकिन लंबी लड़ाई में हम अपने नैतिकता के रास्ते को छोड़ेंगे नहीं और उसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। और एक दिन हमें पूरा विश्वास है जनता हमारी बातों को समझेगी, हमारे साथ जुड़ेगी और सत्ता पे फिर काबिज होंगे और जनता की सेवा करेंगे। जी ऋषभ जी, रत्नाकर जी ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, अवसरवादिता और नैतिकता राजनीति में। ये शब्दों का आपका परिचय है? मुझे लगता है कि जहां तक नैतिकता की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व, नीति और नीयत तीनों की कमी है और उन्हें अंतर आकलन करने की आवश्यकता है। जहां तक इन्होंने तोड़ने जोड़ने की बात कही, अवसरवादी की बात कही, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर सत्ता के लिए कोई अवसरवादी रहा है तो वो कांग्रेस रही है। इतिहास उसका गवाह है। विजय जी, आप काफी जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने काफी समय दिया इस देश में, आपने देखा होगा। और एक विषय रत्नाकर जी ने कहा कि हमने तोड़ने वाले लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम भाजपा तोड़ी है। सर, आप भूल रहे हैं, जब हम चुनाव लड़े थे महाराष्ट्र में तो शिवसेना हमारे साथ जुड़कर थी, टूटकर आपके पास गई। वापस से जोड़ने का काम हमने ही किया है। रत्नाकर जी से ये मैंने सवाल कर दिया था, रत्नाकर जी को मैंने यही कहा था कि कांग्रेस जी दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के ऊपर ये सवाल इसलिए खड़ा होता है, प्रेम जी भी सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, कि चाहे अगर हम बात 1947 करें, 1952 करें, 1959 करें, 1958 करें, हर वक्त किसी ने भारत को जोड़ने की आवाज उठाई तो हमारे जनसंघ के पूर्वजों ने उठाई। 1947 के बाद हम आजाद हुए थे, लेकिन गोवा पोर्टुगीज में भी फ्रेंच एम्पायर था, किसी ने वहां पे झंडा फहराया तो जनसंघ के नेताओं ने फहराया। और हमेशा हमने इस वो मुद्दे पे बात की कि देश जुड़ कर रहे। और जहां तक सैनिकों की बात आती है, हर चीज की बात आती है, हम जब भी चुनाव में जाते हैं हम उनका चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि वो भी देश से जुड़े मुद्दे होते हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश से सटा एक राज्य है, वो वैसे राज्य में हम जरूर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं क्योंकि वैसे राज्य में इफेक्ट करता है ये चीजें। तो इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए कि ये हमेशा कभी सेना को ले आते या देश की हर चुनाव में बात करते। करना आवश्यकता पड़ती है तो हम करते। जी प्रेम कुमार जी, लास्ट कमेंट आपका कि इतनी भारी भारी बातें हो गई कि मुझे समझ नहीं आती, देश की, राष्ट्र की एकता की, जोड़ने की। मैं तो इलेक्शन का पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या होगा इसमें। देखिए, इलेक्शन में बहुत रोचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है। पिछले चुनाव हुए थे वो भी रोचक हुए थे, चाहे कांग्रेस ने एक स्टेट पर कब्जा कर लिया, एक पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। उस तरीके से ये प्रदेश भी 2023 में जो 9 राज्यों के चुनाव होने हैं उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये समझता हूं कि एक भी स्टेट अगर विपक्ष बीजेपी से छीन लेता है तो ये उसकी उपलब्धि होगी। और इस उपलब्धि के साथ अगले जो कर्नाटक 2-1 हो सकता है ये नतीजा। हाँ, मुझे तो 2-1 पक्का लगता है कि जी, आपने क्या बोला था? आपने भी 2-1 बोला, लेकिन 2 कांग्रेस को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम देखिए हमारी, हम तो ऋषभ जी, एक राज्य छीनने में तो दोनों लोग सहमत हो रहे हैं, आप बताएं। देखिए, हम तीनों राज्य में आएंगे और नागालैंड में तो इस बार हम प्रचंड बहुमत से आएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपको बहुत शुभकामनाएं। ऋषभ जी आपको भी, रत्नाकर जी आपको भी, कि आप चुनाव अच्छे से लड़ें और बेहतर चुनाव नतीजों के साथ जीतें।